Hello students, today we are going to cover the topic types of partners. Already we have covered the meaning, definition, features, merits, demerits and the types of partnership firm. Today we are going to cover the topic types of partners. So there are four types of partners: active, sleeping, secret, nominal. And in nominal partner there are two categories: nominal partner by estoppel, nominal partner by holding out. So first there is active partner. By the name it is clear that active means if you are participating actively in something, है ना. So जो पार्टनर हैं वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड देयर लायबिलिटी दैट्स वाई इट इज़ अनलिमिटेड. क्यों? बिकॉज वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं कैपिटल फर्म में और उनका शेयर भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी में. दैट्स वाई दे आर एक्टिव partners. They participate actively in management. Next is sleeping or dormant partner. This type of partner who doesn't participate in the management of the firm, like active partner. ये active partner जैसे participate करते हैं management में, that's why they are active. They are sleeping because they are not participating in management decisions or management of the firm. So these partners are bound by the activities of other partners. लेकिन इन ये अदर पार्टनर्स की एक्टिविटी से भी बाइंड होते हैं. क्यों? क्योंकि ये कैपिटल भी शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं और इनकी जो लायबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड है. सिर्फ ये है कि ये एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. नेक्स्ट, सीक्रेट पार्टनर. नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सीक्रेट. if nobody knows something about us or about anyone or about anything, है ना. So they are secret partners. One whose association or relation with the firm is not known to outsiders. मतलब इनकी जो रिलेशन है फर्म के साथ, जो भी इनका बिजनेस में पार्टिसिपेशन है, वो लोगों को नहीं पता होता है ना. यही सीक्रेट है. That's why they are called secret partner, because their association or relation with the firm is not known to outsiders. Rather, he contributes the capital, participates actively in the management, his liability is also unlimited. सिर्फ इनका जो फर्म से रिलेशन है वो पब्लिक को क्लियर नहीं होता है. बाकी ये कंट्रीब्यूट भी करते हैं कैपिटल में, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं और इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है. नाउ नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर. द नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म. The partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do unlimited liability, do not get any share in the profit or loss of the firm. The nominal partner, sorry ये partner है, not it is a part, only lends his name and reputation for the benefit of the firm. This is partner. So his name and reputation for the benefit of the firm, he is liable to outsiders. अब ये ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, ना इनका कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना. तो इसीलिए ना अनरियल पार्टनर बोला जाता है. ये रियल पार्टनर्स नहीं हैं. ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट टू कैटेगरीज ऑफ नॉमिनल पार्टनर. फर्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल. The person who accepts that he is a partner in the partnership firm by his own words or conduct is known as nominal partner by estoppel. मतलब ये अपने बिहेवियर से, ये अपने कंडक्ट से ये शो करते हैं कि दे आर द पार्टनर. ओके, जबकि ये ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना इनका कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, बट ये इनके कंडक्ट से ऐसा शो करते हैं. ही इज़ लायबल फॉर द डेप्ट्स विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, है ना. लेकिन अगर फर्म को कोई भी लॉस होता है या डेप्ट में जाता है तो इनकी रेपुटेशन की वजह से तो ये लायबल हैं. सो फॉर एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. इफ़ मिस्टर एक्स एज द एक्टिव पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये एक्टिव पार्टनर है मिस्टर एक्स, अप्लाइज फॉर अ लोन, इन्होंने कहीं अप्लाई किया है लोन के लिए, बिजनेस के लिए. Mr. A, who is not
the partner requests the financier to give loan to firm as he is also a partner in that firm, then Mr. A will be considered as a nominal partner by Stoppel. If the partnership firm fails to pay back the loan, then financier can claim the loan from Mr. A. अब जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि मिस्टर एक्स जो है उन्होंने अप्लाई किया है और मिस्टर ए की वजह से उन्हें लोन मिल जाता है, मिस्टर ए की रेपुटेशन की वजह से उन्हें लोन मिल जाता है, लेकिन बिजनेस को लॉस हो जाता है। तो इसके लिए जो मिस्टर ए हैं उनकी रेपुटेशन की वजह से उन्हें एक्स को लोन मिला था, तो वो लायबल होंगे और फाइनेंशियर उन्हें बोल सकते हैं कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से ही बैंक ने उन्हें मिस्टर एक्स को लोन दिया था, मिस्टर ए की वजह से। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब नॉमिनल पार्टनर में सेकेंड जो है वो है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसका मतलब है द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म, सो ही इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब क्या, अब हमने जो स्टॉपल वाला पढ़ा नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल, उसमें वो अपने कंडक्ट अपने बिहेवियर से खुद आगे होके शो कर रहा है कि वो पार्टनर है, बट जबकि वो पार्टनर नहीं है ना। लेकिन इसमें भी सेम चीज़ है कि ये कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोई और बोल रहा है इनको, ये खुद नहीं बोल रहे हैं, बट कोई और बोल रहा है कि ये पार्टनर है और वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बाय नॉट सेइंग एनीथिंग। सो इस टाइप के पार्टनर्स कहलाते पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल से मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज ऑल्सो अ पार्टनर इन द फर्म एंड मिस्टर ए शोज नो ऑब्जेक्शन टू द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स, then Mr. A will be called nominal partner by holding out. He will be liable to pay back the debts which the company got by using his name. जैसे कि हमने नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल में देखा कि वो अपनी गुडविल की वजह से या वो खुद आगे जाके बैंक में बोल रहे हैं कि मेरी यू कैन गिव द लोन टू मिस्टर एक्स और आई एम द पार्टनर, है ना, तो वो लाइबल हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर मिस्टर एक्स बोलते हैं कि ये मेरे पार्टनर हैं एंड यू गिव मी द लोन ऑन द बेस ऑफ मिस्टर ए, तो वो लायबल हैं, मिस्टर ए लायबल हैं क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया जब मिस्टर एक्स बोल रहे हैं कि ये मेरे पार्टनर हैं। तो अगर पार्टनर ऑब्जेक्शन नहीं लेता है कि नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो वो लायबल है। अगर कोई भी बिजनेस को लॉस होता है तो उसे भी फाइनेंसर को लोन, बैंक को लोन में देना पड़ेगा। आई होप दीज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर क्लियर टू यू। नाउ वन मोर पार्टनर इज देयर, दैट इज माइनर पार्टनर। माइनर मीन्स द पार्टनर हु इज अंडर एज, है ना, जिसकी एज अंडर है। हमारे यहाँ इंडिया में 18 ईयर्स उसको माइनर माना जाता है, जो अंडर 18 होते हैं। अदर कंट्रीज़ में अदर एजेस भी हो सकती हैं। सो नाउ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। अगर हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो वो परमिट नहीं करती है कि जो माइनर है वो पार्टनर हो पार्टनरशिप फर्म में। अगर है भी तो इस सिर्फ पार्टनर तो नहीं है, लेकिन हाँ वो बेनिफिट ले सकते हैं। और माइनर पार्टनर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट, वो ना कोई कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही वो आउटसाइडर को लायबल हैं क्योंकि वो ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और क्योंकि वो माइनर हैं तो वो आउटसाइडर्स को बिल्कुल लायबल नहीं है। अगर कोई भी लॉस होता है बिजनेस को तो वो जवाबदार नहीं है कि वो किसी और को उसका पेमेंट करेंगे। ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस, लॉस में कोई शेयर नहीं है, प्रॉफिट में है, बेनिफिट उन्हें हम दे सकते हैं। ही गेट्स ओनली शेयर इन द प्रॉफिट। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी the minor has to give a public notice stating whether he will remain as a partner in the firm or not। हाँ, लेकिन जब माइनर एक प्रॉपर एज पे आ जाते हैं तो उसे एक पब्लिक को नोटिस देना होता है कि अब वो एक मेजॉरिटी की एज पे हैं और अब वो पार्टनर हैं फर्म के। इफ़ ही डज नॉट गिव एनी नोटिस विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड देन ही विल बी डीम टू बिकम एन एक्टिव पार्टनर इन द फर्म। अगर वो नोटिस नहीं देते हैं तो भी वो एक्टिव पार्टनर बन जाएंगे फर्म के। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी हिज लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड। और जैसे ही वो मेजॉरिटी पे आए तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी जो पार्टनरशिप फर्म में होती है, लाइक अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ही विल गेट शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, और प्रॉफिट हो या लॉस उसमें उनका शेयर होगा, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे कि अदर एक्टिव पार्टनर होते हैं। सो आई होप द माइनर पार्टनर इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो